ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਸ਼ੋਅ ਲਾਈਵ ਹੈ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਮਾਰਾ ਲਾਇਰ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਰਾ ਲਾਇਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਖਾਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਹ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ, ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਇਹ ਹੈ, ਬਟ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਾਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਉਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਐਕਸਪਰਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਮਿਤ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ। ਅਮਿਤ ਜੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅਮਿਤ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਇਆ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਜਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਂਟ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ एजुकेशन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। एक्चुअल रियलिटी की है ये? देखिए अमन जी, मैं पिछले 7 महीने से ऑस्ट्रेलिया में था। मैं मार्च में गया था, तो कोविड सिचुएशन की वजह से मैं वहाँ स्टक हो गया, तो मैं 7 महीने ऑस्ट्रेलिया में ही था। ऑस्ट्रेलिया में इस समय बहुत ज़्यादा लेबर शॉर्टेज है। बिजनेसेस का गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, ठीक है। बिजनेसेस बंद हो रहे हैं, लेबर की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। बिजनेसेस लेबर की कमी की वजह से सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं टारगेट था कि एक बार डबल डोज वैक्सीनेशन हो जाए। उनका टारगेट था कि 90% जो पॉपुलेशन है ऑस्ट्रेलियन, उनको डबल डोज वैक्सीनेशन हो जाए, उसके बाद हम जो है अपने बॉर्डर्स खोल देंगे। ओके। तो 15 दिसंबर से आपने देखा है कि इन्होंने अपने इंटरनेशनल बॉर्डर खोल दिए हैं। वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उनकी कंट्री में आए। इकॉनमी को काफ़ी झटका लगा है कोविड की वजह से, काफ़ी जो है डेफिसिट में चली गई है इनकी जो इकॉनमी है। सो कहीं ना कहीं अपनी इकॉनमी को बूस्ट करने के लिए, बिजनेसेस को सपोर्ट करने के लिए ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕਾਫੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਖੁੱਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਸਟਰਡ ਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਰੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਦੇ ਵਾਂਟ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਵੀ ਨੇ, ਬਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਉਹ ਫਾਈਲ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਹੀ ਜਾਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? देखिए अमन जी, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई किया है कि इंडियन मार्केट में काफ़ी फ्रॉड भी है। अभी मेरे पास ही कुछ बच्चों ने कांटेक्ट किया है जो आज से 2-3 साल पहले ऑस्ट्रेलिया गए थे। उन्होंने जो भी है अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स या जो है अपने गैप के डॉक्यूमेंट्स एजेंट की सपोर्ट की वजह से बनवाए थे, ठीक है। फैब्रिकेटेड वीज़े लग गए, चले गए। हाँ जी। तो स्टूडेंट्स को ये समझना पड़ेगा कि आप आज की डेट में नकली फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स या गैप के डॉक्यूमेंट्स लगाकर ऑस्ट्रेलिया चले तो जाओगे, लेकिन वो एक टेम्परेरी फेस है। इमिग्रेशन कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्स बाद में वेरीफाई करती है, और बाद में जब वो पकड़े जाते हैं तो सीधा वीज़ा कैंसिलेशन का नोटिस आता है। तो इमेजिन करो, बच्चे ने 2 साल 3 साल वहाँ पर लगाए, अपनी फीस भी भरी, पढ़ाई भी करी, उसके बाद सडनली उसको नोटिस आता है कि आप कंट्री छोड़ के जाओ, आपने जो है गैप का डॉक्यूमेंट या फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट फ्रॉडुलेंट लगाया था। तो ऐसे काफ़ी केसेस आ रहे हैं इस समय ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ से। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਯੋਗ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਏਜੰਟ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਐਥੀਕਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ, ਕੈਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨਲੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੈਪ ਬਣਵਾ ਲਓ। ਆਇਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਫੈਬਰੀਕੇਟਡ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਾਂ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਬੜੇ ਬਣੇ। ਬਟ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸੌਰੀ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ PR ਨੂੰ ਐਲੀਜੀਬਲ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਹ ਫੇਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਬਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੈਸਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਬਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਓ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਗਾ, ਕੀ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ? नहीं। देखिए 100% वीज़ा अप्रूवल रेट आज की डेट में नहीं है,
पिछले एक हफ्ते में कम से कम 5 से 6 एप्लीकेंट्स ने मुझे अप्रोच किया है। बीइंग अ रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट, मारा की वेबसाइट से ऑल ओवर इंडिया से लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं। दिल्ली से मुझे काफ़ी लोगों ने कांटेक्ट किया कि हमारा वीज़ा रिसेंटली 2 दिन पहले डिक्लाइन हो गया, ठीक है, तो क्या हम रीअप्लाई कर सकते हैं। जिन बच्चों का भी ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा डिक्लाइन हो जाता है तो उनका सबसे पहला क्वेश्चन ये रहता है क्या हम रीअप्लाई कर सकते हैं। इसका आंसर बड़ा सिंपल है, देखना पड़ता है कि आपका जो रिफ्यूज़ल का कारण क्या है। अभी मेरे पास इंडिया की टॉप कंपनी है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, वहाँ से एक बच्चे का रिफ्यूज़ल आया, ठीक है, तो मैंने जब रिफ्यूज़ल लेटर देखा तो उसमें एप्लीकेंट के जो वर्क एक्सपीरियंस के डॉक्यूमेंट थे वही अपलोड नहीं किए गए। इमिग्रेशन ऑफिसर कह लिए भी नेगलिजेंसी या नेगलेक्ट करता है, सही तरीके ਨਾਲ रिप्रेजेंट नहीं ਕੀਤਾ, प्रोफाइल ठीक सी, प्रोफाइल बहुत अच्छा था, 7 बैंड थे, बहुत अच्छा प्रोफाइल था, कोई गैप नहीं था। जहाँ पे भी टीचिंग की जॉब करता था एप्लीकेंट, उसकी सैलरी अकाउंट में आती थी, लेकिन जो कंसल्टेंट था उसने डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए, ठीक है, तो इमिग्रेशन ऑफिसर ने लिखा कि हम आपके जो गैप है उससे सेटिस्फाइड नहीं है कि गैप का क्या कारण है, आपने कोई सपोर्टिंग एविडेंस नहीं लगाया है, इस वजह से जो है वीज़ा डिक्लाइन कर दिया गया। तो डिपेंड करता है कि रिफ्यूज़ल का कारण क्या है। कुछ केसेस में आप रीअप्लाई कर सकते हो, कुछ केसेस में आप रीअप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। रीअप्लाई तो वैसे आप कर ही सकते हो, बट सक्सेस के चांसेस कम होते हैं। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 4 ਵਾਰੀ 5 ਵਾਰੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੈਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ, ਤੇ GT ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਜੈਨੂਇਨ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਐਂਟਰੈਂਟ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਫਿਲ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫਿਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੀ ਅਮਿਤ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬੱਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਬਟ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ, ਆਫ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਸੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬੇਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਪਰਸਨਲੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੋ, ਦੇਖ ਸਕੋ, ਉਹ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਬਹੁਤ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾ ਕੇ ਵੀ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਹਰਮਨ ਜੀ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਸਰ ਮੈਂ 2019 ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵੱਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਓਵਰਆਲ 66 ਤੋਂ 5.5 ਸੀਗੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ ਸਰ। ਓਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਚ 57 ਨੇ ਜੀ ਸਕੋਰ, ਤੇ ਕੀ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਐਮਬੈਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਇੰਟੇਕ ਮਿਲੂਗਾ ਜੀ? 2019 ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? 2019 +2 ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ ਜੀ ਸਰ, +2 ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਜੀ। ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਿੰਨੇ % ਨਾਲ? 70% ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ 2019 ਤੋਂ 21 ਤੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਰ BA ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਟ मैं एग्जाम नहीं देते जी, बट मेरे को एडमिशन वगैरह वो चीज़ें पईयां नहीं सारियां। जी सर, की कहना सर इस केस में लेके? देखिए, ऑस्ट्रेलिया जो है वो क्रीम प्रोफाइल के बच्चों को जो एडमिशन दे रहा है, 2019 पास आउट बच्चे के लिए ऑप्शंस हैं, बहुत कम, बड़े लिमिटेड ऑप्शंस हैं। कुछ कॉलेजेस हैं जो 2019 पास आउट बच्चों को एडमिशन दे देते हैं, और ऑस्ट्रेलिया का जो वीज़ा प्रोसेस है, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट रहता है वो एडमिशन रहता है, तो इसके लिए ऑप्शंस हैं, ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ इसके लिए। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਲੋਮਾਸ ਦੇ ਵੀ ਵੀਜ਼ੇ ਜਦੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਬਟ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲजेस ਕਿਹੜੀ प्रोफाइल ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ भी क्लियर कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ऑस्ट्रेलिया में जो है अगर देखा जाए पिछले कुछ सालों में सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के वीज़ा आए हैं जो यूनिवर्सिटी में जाते थे, बैचलर डिग्री प्रोग्राम में, मास्टर डिग्री प्रोग्राम, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं, इनकी भी अपनी एक मार्केट है। नॉर्मली जो बच्चे इंडिया से यूनिवर्सिटीज़ में जाते थे, 6 महीने बाद चेंज करके इन प्राइवेट कॉलेजेस में जाते थे, बट जो भी करंट सिनेरियो चल रहा है, इमिग्रेशन प्राइवेट कॉलेजेस में भी जो बच्चे जा रहे हैं बैचलर डिग्री करने, मास्टर डिग्री करने, प्लस डिप्लोमा कोर्स करने के लिए, डिप्लोमा इन बिजनेस, डिप्लोमा इन IT, कॉमर्शियल कुकरी, ऑटोमोटिव, इनमें भी काफ़ी अच्छा वीज़ा अप्रूवल रेट है। पहले के मुकाबले अराउंड 25% वीज़ा अप्रूवल रेट रहता था आज से पहले, बट अभी आज की डेट में 70 से 80% वीज़ा अप्रूवल रेट है डिप्लोमा कोर्सेज में भी। जी, तो बिल्कुल जी, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ, TV ਸ਼ੋਅ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਾ ਲਾਇਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ,
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਐਕਸਪਰਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਮਿਤ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਪਡੇਟ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਵੀਜ਼ਾਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸਕਸੈਸ ਹੈ। ਈਵਨ ਡਿਪਲੋਮਾਸ ਦੇ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਡਿਪਲੋਮਾਸ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਸੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਹਨੂੰ मतलब गाइड करते हो भी हाँ ਤੁਸੀਂ डिप्लोमा ले सकते हो? देखिए, सबसे पहले हम जो है मार्केट का ट्रेंड देखते हैं, वीज़ा अप्रूवल रेट का ट्रेंड देखते हैं कि इमिग्रेशन डिप्लोमा के जो एप्लीकेंट्स हैं उनको कैसे देख रही है। ठीक है, तो प्रीवियसली डिप्लोमा का अप्रूवल रेट कम था तो हम डिप्लोमा जो है प्रमोट ही नहीं कर रहे थे। अब कहीं ना कहीं इमिग्रेशन को जो है बच्चे चाहिए। मेरे ख्याल कॉल जुड़ गई है। हेलो, सॉरी, हेलो, ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਸਰ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਈਟੀਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ। ਓਕੇ ਜੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਆਈਟੀਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ? ਹਾਂਜੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਓਕੇ, ਆਈਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ। ਕਿਹੜੇ ਈਅਰ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ? 2009 ਤੋਂ 11। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? 2009 ਤੋਂ 11 ਤੱਕ। ਨਹੀਂ, 2011 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋਬ ਕਰਦਾ। इलेक्ट्रिशियन दी? हाँ जी। ओके, की कहना सर? देखिए, अगर ये स्टडी वीज़ा के बारे में पूछ रहे हैं तो एडवांस डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का प्रोग्राम है, बैचलर डिग्री प्रोग्राम है। ये फर्दर जो है अपने स्किल्स और क्वालिफिकेशन अपग्रेड करने के लिए जा सकते हैं। आइल्स इनको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हुण ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੈ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਪੀਐਫ ਯੂ, ਤੇ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਰਹੇਗਾ? बिल्कुल बिल्कुल एक्सेप्टेबल रहेगा। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਐਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਮਾਰਾ ਲਾਇਰ ਨੇ ਅਮਿਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸਿਸ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਕਿ ਕਾਲ ਜੁੜ ਗਈ ਸੀ। हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हमें देखना पड़ता है कि इमिग्रेशन का क्या व्यू है डिप्लोमा कोर्सेज के जो वीज़ा एप्लीकेंट्स हैं उनके लिए। ठीक है, अभी प्रेजेंटली ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को बच्चे चाहिए। ठीक है, प्रोफाइल, नो डाउट प्रोफाइल देखकर वो लोग वीज़ा दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर 10 बच्चों ने अप्लाई कर दिया 10 के 10 बच्चों का वीज़ा आ जाएगा। इसमें देखा जाता है कि बच्चे का बैकग्राउंड क्या है, उसने क्या सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, आइल्स का स्कोर क्या है, फाइनेंशियल क्या है, और कॉलेज की रेपुटेशन कैसी है, और कोर्स कैसा चूज़ किया है। जी जी, सो हर चीज़ देख के फिर ही देता। बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट कॉल लेंगे। हेलो, हेलो, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल सर, मैं मनदीप कौर ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। जी मनदीप जी, की सवाल है? सर, मैंने बीकॉम ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੁਣ क्लियर इकोनॉमिक्स ਚ। ओके। ओवरऑल मेरे 6 हो चुके हैं आइल्स के। ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ? बीकॉम इकोनॉमिक्स किन्ने परसेंट ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? सर 70% ਨਾਲ। 70%, 6 बैंड है जी। ओके, की कहना सर ऑस्ट्रेलिया में? देखिए, ऑस्ट्रेलिया में इनके लिए ऑप्शंस हैं। MBA का कोर्स कर सकते हैं, मास्टर ऑफ अकाउंटिंग कर सकते हैं, एंड बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो प्रोग्राम है वो कर सकते हैं। ठीक है, मैं पर्सनली जो बच्चों को है सजेस्ट करूँगा जो है मास्टर्स इन बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम के प्रोग्राम में जाए, क्योंकि अकाउंटिंग में जो बच्चे गए हैं ऑस्ट्रेलिया में उन्हें PR में काफ़ी जो है स्ट्रगल करना पड़ा। अभी भी काफ़ी बच्चे वेट कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो MBA है, उसमें PR में थोड़ी सी दिक्कत आती है अगर आप स्किल्ड माइग्रेशन कैटेगरी के थ्रू अप्लाई करते हो। तो बड़े लिमिटेड से प्रोग्राम हैं, ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं, ऑप्शन इनके लिए अवेलेबल हैं, तो एक बार जरूर कंसल्ट करें जी। नेक्स्ट कॉल दें। हेलो, हेलो, सत श्री अकाल जी। हाँ जी, सत श्री अकाल सर। जी मैम, की सवाल है? हाँ सर, मैं जलंधर ਤੋਂ ਮਮਤਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। जी मैं एक ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਆ। मैं 2 ਸਾਲ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਆ। 2013-14 ਪਾਸ ਆਊਟ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ। जी जी, सवाल करो। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀ? ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ। ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਮ? ਮੈਡੀਕਲ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ। ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ। सैलरी अकाउंट में आई है? ਸੈਲਰੀ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਓਕੇ, ਆਇਲਸ ਬੈਂਡ ਕਿੰਨੇ ਨੇ?
ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ। ਓਕੇ, ਪੀਟੀ ਆਇਲਸ ਜਾਂ ਡੁਲਿੰਗੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਓਕੇ ਸਰ, ਡਿਊਲਿੰਗੋ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰ? ਹਾਂ, ਡੁਲਿੰਗੋ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਅਮਿਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਜੀ। भाई देखिए, ऑस्ट्रेलिया में जनरली जो बच्चे +2 पास हैं या डिप्लोमा होल्डर हैं और जिनका काफ़ी सालों का गैप है, इनके एडमिशन में दिक्कत आती है। यूनिवर्सिटीज़ जो हैं प्रेफर नहीं करती हैं। अगर कोई बच्चा ग्रेजुएट है, उसका 5, 7, 8 या 10 साल का भी गैप है, उसको एडमिशन मिल जाता है इजीली। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि इनके लिए ऑप्शंस नहीं है, ऑप्शंस हैं इनके लिए। इनके जो पूरे डॉक्यूमेंट्स देखकर ही हम असेस करके बता सकते हैं कि इनका एडमिशन हो पाएगा नहीं हो पाएगा। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਬੱਚਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜੀ, 2 ਤਾਂ ਆਈਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੀਐਸਸੀ ਨਰਸਿੰਗ ਵਾਲਾ, ਬੀਐਸਸੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਲੀੋਂ ਕਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਜਲੰਧਰੋਂ ਕਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੋ ਵੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਐਡਸ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਜੋ ਕਨਵਿੰਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ बड़ी लोड़ है जी, ऑस्ट्रेलिया ने वीज़े देने ही देने हैं। देखिए, ऑस्ट्रेलिया जो है सेकंड मोस्ट पॉपुलर कंट्री है इंडिया में, कनाडा के बाद। तो ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया बंद था 1-2 सालों से, तो जैसे ही खुला है तो काफ़ी लोग जो है अप्लाई करना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। लेकिन मैं इसके साथ साथ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यूएसए के बारे में भी देना चाहूँगा। ठीक है, यूएसए के बारे में ना बच्चा सोचता ही नहीं है। उसका सोचता ਤਾਂ नहीं जी, ਉਹ ਪਤਾ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬੇਸਡ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ कितने ना कितने डर हो जाता है। हाँ, देखिए, ना सोचने का एक कारण और है, बच्चा सपने में भी नहीं सोचता कि मैं कभी यूएसए जा पाऊंगा। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, बराड़ा गांव से, ठीक है, बच्चा जिसने आइल्स नहीं की थी, सिर्फ 2 दिन उसको इंटरव्यू की तैयारी कराई हमने। ठीक है, एम्बेसी में गया, 2 क्वेश्चन उससे पूछे और साथ के साथ उसको वीज़ा दे दिया, पासपोर्ट उसका रख लिया। अभी हमारे 4 बच्चों की वीज़ा आए हैं लास्ट वीक यूएसए के। ठीक है, चारों गाँव के बच्चे थे, तो उनको सिर्फ एक बेसिक प्रिपरेशन कराया था। यूएस एम्बेसी आपको कोई एम्बेसी में खड़ा करके आधा घंटा क्वेश्चन नहीं पूछेगी, वो 2-3-4 मिनट है। वो बहुत स्मार्ट है, वो सिर्फ 1 या 2 मिनट के अंदर आपको जज कर लेते हैं। उन्होंने 1 या 2 मिनट में आपकी इंग्लिश एबिलिटी जज कर लेनी है, आपका आईक्यू लेवल, आपका कॉन्फिडेंस। यूएसए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। यूएसए की जो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है, जितनी ऑस्ट्रेलिया की कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है, लगभग उसके बराबर है। यूएस का जो सबसे बड़ा बेनिफिट जो मुझे लगता है, यूएस की एजुकेशन सबसे ज़्यादा एडवांस एजुकेशन है वर्ल्ड में। ठीक है, आईटी का कोर्स करने अगर आप जाते हो, इंजीनियरिंग का कोर्स अगर आप करने जाते हो, बहुत अच्छे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं। कोई बड़ी बात नहीं है कि बच्चा बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री वहाँ से करे और उसको 1 करोड़ रुपए का पैकेज साथ के साथ मिल जाए। बहुत सी ऐसी सक्सेस स्टोरीज हैं जी, 3-3, 4-4 लाख डॉलर का एनुअल पैकेज बच्चे ले रहे हैं सिर्फ 2 या 3 साल के वर्क एक्सपीरियंस के बाद। सेकेंडली, जिन बच्चों का गैप है, ठीक है, यूएस में गैप मैटर नहीं करता, जैसे वो ऑस्ट्रेलिया गैप को देखता है। ठीक है, किसी बच्चे का 2 साल का गैप है, 3 साल का गैप है, आइल्स नहीं किया, ड्यूलिंगो टेस्ट कर लिया या इंग्लिश मीडियम के बेसिस पे, ठीक है, फंड्स का कोई इशू नहीं है। आप यूएस एम्बेसी में जाते हो, आपकी फ़ाइल देखते ही नहीं है। ठीक है, वो 10 में से 9 केसेस में आपका कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगेंगे आपसे। आप जाओगे, काउंटर पे खड़े होंगे, आपसे 2 क्वेश्चन पूछेंगे। सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो पूछते हैं, हु इज़ स्पॉन्सरिंग यू। यूएस इंटरव्यू में आज की डेट में जो सबसे बड़ा कंसर्न है एम्बेसी का, वो है फाइनेंशियल्स। एम्बेसी देखना चाहते हैं कि आप यूएस में एजुकेशन अफोर्ड कर सकते हो नहीं कर सकते। तो आपसे पूछेंगे हु इज स्पॉन्सरिंग यू, आपकी फैमिली की एनुअल इनकम कितनी है, कितने फंड्स आपके पास हैं जी। आपके अकाउंट में 30 लाख 40 लाख रुपया फ्रेश आपने डाला है, वो कोई सोर्स नहीं पूछते, कुछ नहीं पूछते। 2 क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक से जवाब दे दिया आपने, साथ के साथ आपका। ਸੋ ਯੂਐਸਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਲ ਕਾਫੀ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏ, ਬਟ ਹਾਂ ਇਹ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਕ ਕਾਲ ਐਕਸਪਰਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸੇ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।